Hi friends, today's session we are going to learn about the increasing and decreasing function, that is exercise 6.2. First problem is given that prove that the function f of x equal to 3x plus 7 is steadily increasing on R. What is here is steadily increasing? First of all, know about the increasing and decreasing function. Okay, for this concept we go some basics. See here if we consider a function f maps a to r be a function, then we have the 5 points. F is said to be monotonically increasing on a if x1 x2 belongs to a, x less than x2, x1 less than x2, that is f of x1 less than equal to f of x2, then you can say it is a monotonically increasing function. Here condition is x1 less than x2, f of x1 less than equal to f of x2, then you can say it is monotonically increasing function. Next come to second concept. When you say it is increasing, strictly increasing on given interval a, suppose we have two elements x1 x2 belongs to a, x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2. See here, monotonically increasing condition, first part is same, x1 less than x2, first steadily increasing x1 less than x2, only here you have to look the condition, here less than equal to, then it will become monotonically increasing, और यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, then it is called as the steadily increasing. Okay, now come to the third point. F is said to be monotonically decreasing. Here monotonical decreasing on given interval a. We suppose x1 x2 belongs to interval a. Condition x1 less than x2 implies f of x1 greater than equal to f of x2. Here f of x1 greater than equal to f of x2. Then it is said to be a monotonically decreasing function. If you just remove this inequality greater than only, then it will become as a steadily decreasing function. That is, f is said to be, fourth one, f is said to be steadily decreasing on given interval a if you consider elements x1 x2 belongs to a, x1 less than x2 implies f of x1 greater than f of x2, then it is said to be steadily decreasing function. Okay, so these 4 points are important. Lastly, when you can say it is monotonically decreasing or increasing, f is said to be monotonic on a if f is either monotonically increasing or monotonically decreasing on a. So when you say it is a monotonic function, if in the given interval either monotonical increasing or monotonical decreasing, then that is called as a monotonic function. Either increasing or decreasing on the given interval any function, then that function is called as a monotonic function. Okay, now here two types of monotonical functions are there, that is monotonic decreasing function, monotonic increasing function. Okay, let us will more understand with the help of the graph, steadily increasing function and steadily decreasing function. See, this is a graph, two graphs I have drawn here. First one steadily increasing function, second one steadily decreasing function. फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टेटली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में.
ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर दिया। गिवन इंटरवल इंपॉर्टेंट, गिवन इंटरवल इज ए बी। जो हम लोग इंटरवल लेंगे वो इंटरवल क्या होगा, ए बी, इंटरवल ए बी कैन सपोज गिवन इंटरवल ए बी। इंटरवल ए बी इफ यू कंसिडर टू एलिमेंट्स, हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं x1 और x2। तो x1 का सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन कर्व में एफ ऑफ एक्स में, तो यह आएगा एफ ऑफ x1, और x2 करेंगे तो एफ ऑफ x2। ये हम लोग एक कर्व ड्रा कर देते हैं। सो सी है, दिस इज कर्व इज इन द इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज मूविंग फ्रॉम top to bottom to top, so it is a increasing function. Okay, given interval a b, so this is called as a steadily increasing function on the given interval a b. Similarly, if you come here, steadily decreasing function, so same I have considered interval a b, ठीक है, ए बी, 2 points x1 x2 that is belongs to interval a b, x1 and x2, and then if you substitute here given curve x1 you will get f of x1, if you substitute x2 you will get the f of x2. So it is the graph is coming from top to bottom, top to bottom, so this is a decreasing function. So you can say the definition, monotonic function. A function f of x is said to be monotonic on an interval, हम लोग जो इंटरवल लिए हैं ए, इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, if it is either increasing or a steadily decreasing on open interval a b, then that type of function is said to be a monotonic functions. ठीक है, अब हम लोग को जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम करना है वह इसी के ऊपर बेस के ऊपर हम लोग करेंगे, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है, फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 7 इज स्टेटली इंक्रीजिंग ऑन आर। यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है स्टेटली इंक्रीजिंग ऑन आर, तो स्टेटली इंक्रीजिंग का कंडीशन हमको याद होना चाहिए, x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 स्टेटली बोल रहा है ना, तो इसीलिए एफ ऑफ x2 आ जाए, सिर्फ लेस देन आएगा स्टेटली इंक्रीजिंग फंक्शन में। तो हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 7 है, ठीक है। लेट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू r, इम्प्लाइज x1 लेस देन x2 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है ना, तो बोथ साइड 3 से हम लोग इंटू कर देंगे, 3x1 लेस देन 3x2 इंटू कर दिए। आप देखना है +7 है, तो बोथ साइड +7 ऐड कर देंगे, 3x1 + 7 लेस देन 3x2 + 7। यह हो गया एफ ऑफ x1 का वैल्यू और ये होगा एफ ऑफ x2 का वैल्यू। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2, तो हमारा कंडीशन आ गया, देयरफॉर x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। तो प्रूफ हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ x इज स्टेटली इंक्रीजिंग ऑन R।
ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम प्रूव करने का प्रोसेस। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मेन कॉन्सेप्ट एक कंडीशन याद रखना है हमको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या आता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या आता है। हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है प्रूव f of x equal to e power of 2x is strictly increasing on r। ये भी रियल नंबर के ऊपर प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सेम प्रोसेस ले लेते हैं सॉल्यूशन का। तो हम लोग x1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r ले लेंगे। तो कंडीशन हो गया x1 लेस देन x2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सेम, दैट इज x1 है, यहाँ पे देखना है e पावर ऑफ 2x है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है ना, तो बोथ साइड 2 से इंटू कर देते हैं, इंटू हो गया। अब क्या करेंगे, पावर में इसको रेस करेंगे, तो ये हो जाएगा e पावर ऑफ 2x1 लेस देन e पावर ऑफ 2x2। ये हो गया e पावर ऑफ 2x1 लेस देन e पावर ऑफ 2x2। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा f ऑफ x1 का, यह हो जाएगा f ऑफ x2 का। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x1 लेस देन x2 बिलोंग्स टू r लेंगे, जो इंटरवल दिया है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आया था, x हम लोग को x1 लेस देन x2 सपोज किए थे, तो हमारा लास्ट में आ गया f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। देयर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो हम बोल सकते हैं f of x is strictly increasing on r। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। हम थर्ड प्रॉब्लम आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव f of x इक्वल टू sin x is first problem strictly increasing on open interval 0 to pi by 2 है फर्स्ट। सेकेंड प्रॉब्लम है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई है। थर्ड प्रॉब्लम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो हमारे 3 प्रॉब्लम है। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू साइन x है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो हमारा इसका हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू
साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट स्टेटली इंक्रीजिंग, फर्स्ट स्टेटली डिक्रीजिंग। तो हम फर्स्ट करते हैं फॉर स्टेटली इंक्रीजिंग के लिए कर लेते हैं, स्टेटली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, स्टेटली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन होता है एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। स्टेटली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन होता है। तो हम एफ डैश कर चुके हैं, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है वैल्यू, और हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बढ़ के होना चाहिए। दिस एक्स वैल्यू मस्ट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल में दिया है 0 to π/2 दिया है, 0 to π/2 दिया है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, देखो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हैं, ग्राफ ले लेते हैं। यह हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया ऑरिजिन। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं π/4 और यह हो गया π/2 और यहाँ पे 1, ऐसा ही 2 ले लेते हैं, नॉलेजन हियर। अगर हम cos 0 लगाते हैं, यहाँ पे इंटरवल दिया है 0 to π/2, तो इसको एलिमिनेट करके 0 से π/2 के बीच में लेना है। सपोज cos 0 लगाते हैं, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और ठीक है, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये ग्राफ इस तरह आएगा, ग्राफ इस तरह आएगा। सिंस cos x है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, सो यहाँ पे देखते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ए सेकेंड क्वाड्रेंट, ए थर्ड क्वाड्रेंट और ए फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec all are positive in first quadrant, all are positive in first quadrant। therefore हम बोल सकते हैं कि cos एक्सिस स्ट्रेटली इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 0 to π/2। और अगर हम इसका वैल्यूज बढ़ाते हैं, 180 लेते हैं, तो ये नीचे आ जाता है। तो ये फोर्थ में cos क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0 to π/2 इंटरवल ही दिया है, तो इसीलिए 0 to π/2 क्या है, cos x क्या है, पॉजिटिव है। तो हम बोल सकते हैं therefore f of x is steadily increasing on open interval 0 to π/2। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं सेकेंड प्रॉब्लम के पास। सेकेंड प्रॉब्लम है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 π। ठीक है, π/2 से लेके π तक सेम रहेगा प्रोसेस में भी। एफ डैश ऑफ एक्स डायरेक्ट ले लेते हैं हम लोग cos x। ठीक है, ग्राफ हम खींचते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे π/4 है, π/4 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पे ले लेते हैं π। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ हो जाएगा 3π/4। तो अब इसका इंटरवल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ पे -1। हमारा इंटरवल जो दिया है सेकेंड प्रॉब्लम में π/2 से π दिया है,
पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। तो पाई ये तो हम लोग फर्स्ट में कर चुके हैं यहाँ पर। अब सेकंड आते हैं। cos 3 पाई बाई 4 होता है -1/√2, तो यहाँ हो जाएगा। और cos 180 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें प्लेस पे, ये हो जाता है cos 180 -1। तो हमारा ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह आता है ग्राफ। तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्जर्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप। अभी देखो यहाँ पे यह डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 पाई एबोव द एक्स एक्सिस। ये क्या हो रहा है, फर्स्ट प्रॉब्लम में एबोव द एक्स एक्सिस, तो हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस, सो बिलो द एक्स एक्सिस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो यू कैन से द गिवन इंटरवल पाई बाई 2 पाई स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे इसमें एक्स एक्सिस के अबोव देखना है और एक्स एक्सिस के बिलो देखना है। एक्स एक्सिस के अबोव देखोगे तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के बिलो वाई एक्सिस का वैल्यू देखोगे तो ये क्या होता है, माइनस होता है। देयरफॉर यू कैन से एफ ऑफ एक्स एफ डैश एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल, इम्पोर्टेंट है वो पाई बाई 2 से पाई। सिंपल है, फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको ऑब्जर्व करना है एक्स एक्सिस के अबो और एक्स एक्सिस के बिलो। एक्स एक्सिस के अबो में क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और बिलो में क्या होता है, वाई का वैल्यू माइनस होता है। देयरफॉर एक कॉस एक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। हम लोग इसका कंटिन्यू थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दैट इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग के लिए। इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 सी, इंटरवल क्या है यहाँ पे, 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ ग्राफ खींच लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गया एक्स डैश, वाई एक्सिस हो गया वाई डैश, और ये यहाँ +1, यहाँ पे -1। इंटरवल पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 4 हो गया, और ये हो गया पाई, ठीक है। तो कॉस एक्स का एफ डैश ऑफ एस का वैल्यू कितना है यहाँ पे, कॉस एक्स। तो ये फर्स्ट एक्स एक्सिस के अबोव है, तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है। और पाई बाई 2 से पाई तक ये 1 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। सो ये फंक्शन इंक्रीजिंग above the x-axis, decreasing below the x-axis. So therefore you can say this function is neither increasing neither decreasing. Therefore f of x is neither increasing nor decreasing on a important है, या इन बोल सकते हैं ऑन 0 टू पाई। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि फंक्शन इज एनी वन विल मस्ट बी हैपन, आइदर इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, दोनों इंक्रीजिंग
and decreasing must be not both at a time, will not belong to, that is the function is increasing or decreasing, only one, either increasing or decreasing. So today will be stop here only. Next class we continue the problem number 4. Thank you for everyone.